ये क्वेश्चन CBSE 2025 का है. The statement of the problem says a school wants to allocate students into 3 clubs: sports, music and drama, under the following conditions. The number of students in sports club should be equal to sum of the number of students in music and drama. So we are assuming the number of students. ये अभी हम लोग assume कर ले रहे हैं. We are assuming number of students in sports as X and in music is Y and in drama the number of students is Z. This we are assuming. अब statement आगे क्या है? The number of students in sports club should be equal to, sports में number of students should be equal to sum of the number of students in music and drama. Sports के number of students X हैं. This should be equal to sum of the number of students in music and drama. So X is equal to Y plus Z. इसको अगर आप simplify करें तो X minus Y minus Z is equal to 0. So this forms the first equation. Second equation, the number of students in music club should be 20 more. Number of students in the music club should be 20 more. अभी हम statement को ही लिख रहे हैं. 20 more than half the number of students in the sports club. Half the number of students in the sports club. ये statement ही लिखा अभी हम लोगों ने. Now in terms of X and Y, music में कितने number of students हैं? Y हैं. So Y will be 20 more than half the number of students in the sports. और sports में हमारे पास number of students कितने हैं? X हैं. अब इसको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? We are multiplying this equation by 2. 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा? 2y इज इक्वल टू 40 प्लस x, ऐसा कुछ मिलेगा. और ये सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस 2y एंड प्लस 0z. z वाला टर्म नहीं है, इज इक्वल टू 40. सो दिस फॉर्म्स द सेकेंड इक्वेशन. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी एलोकेटेड इन ऑल द 3 क्लब्स आर 180. मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज 180. सो दिस फॉर्म्स द थर्ड इक्वेशन. आगे क्या स्टेटमेंट है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलोकेटेड टू डिफरेंट क्लब्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. अब मैट्रिक्स मेथड का अभी हम लोगों को यूज़ करना है. मैट्रिक्स मेथड यूज़ करने के लिए नाउ विल बी एक्सप्रेसिंग दीज 3 इक्वेशंस लाइक दिस. हम लोगों ने यहाँ पर ये 1 -1 and -1 we have written down the coefficients of x, y, z. And then for the second equation -1, 2 and 0. फिर उसके बाद तीसरी इक्वेशन में 1, 1 and 1. And this multiplied by x, y and z. This will be equal to numbers on the right side 0, 40 and 180. अब इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस है. आप इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इस कॉलम मैट्रिक्स को एक्स वाई जेड, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. फिर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 0z इज इक्वल टू 40 आ जाएगा. ये सेकेंड इक्वेशन. सो वी हैव एक्सप्रेस दीज 3 इक्वेशन इन टर्म ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के टर्म्स में अभी हम लोग ने एक्सप्रेस कर लिया. वी आर राइटिंग दिस एज ए, this matrix as x and this matrix as b. So a into x is equal to b. और इससे अभी हम लोगों को क्या मिलेगा? x will be equal to a inverse of b. x की वैल्यू अगर निकालें, this will be equal to a inverse of b. So our main task now is to find out a inverse. a inverse निकालने के लिए अब we are rewriting a. a कितना है? 1 -1 -1 -1, 2 and 0, 1, 1 and 1. इसको अभी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? a11, a12, a13, a21, a22, a23. फिर उसके बाद a31, a32 and a33. And
the corresponding cofactors will now be represented by capital A. So A11 will be the cofactor of A11. कैसे मिलेगा? -1 to the power of इन दोनों का एडिशन, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 1 + 1 into an arrangement of numbers which is obtained by removing the row and the column in which A11 is present. A11 जिस रो में है उसको हटा दो, जिस कॉलम में उसको हटा दो, ये कितना आ जाएगा 2 0 1 and 1, और ये सिंप्लीफाई करने पर ये +1 आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, -0. So the answer to this will be 2. And hopefully you know how to calculate the cofactors. A12 -1 to the power of 1 + 2 1 + 2. ये कैसे मिलेगा? रिमूव द रो एंड द कॉलम इन विच दिस इज प्रेजेंट, तो दिस विल बी -1 0 1 and 1. तो A12 की वैल्यू कितनी? -1 and -0, और ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर विल बी व्हाट? +1 A12. फिर उसके बाद A13 -1 to the power of 1 + 3. रिमूव द रो एंड द कॉलम इन विच A13 इज प्रेजेंट, तो ये कितना आ जाएगा? -1 2 1 and 1. तो ये तो +1 आ जाएगा, -1 के ऊपर 4, तो ये -1 एंड -2 -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो -1 एंड -2 विल बी -3 -3, इसका आंसर आ जाएगा. फिर उसके बाद A21. Similarly, we will be calculating all the cofactors. A21 की वैल्यू -1 to the power of 2 + 1. इसको रिमूव कर दें, रिमूव दिस रो एंड कॉलम, ये आ जाएगा -1 -1 1 and 1, और ये सॉल्व करने पर -1 एंड +1 ये 0 आ जाएगा. A22 रिमूव द रो एंड द कॉलम, तो दिस विल बी 1 -1 1 -1 1 and 1, so this will be 1 minus and -1, this will be +2, तो इसका आंसर +2 आ जाएगा. फिर A23 अगर अभी हम लोग कैलकुलेट करना है, देन दिस विल बी इक्वल टू रिमूव द रो एंड द कॉलम इन विच A23 इज प्रेजेंट, 1 -1 1 -1 1 and 1, तो ये सॉल्व करने पर ये माइनस साइन 1 and +1, 1 + 1 will be 2, so this will be -2. A31 की वैल्यू ये -1 -1 2 and 0, तो ये सॉल्व करने पर 0 and +2, तो A31 की वैल्यू विल बी +2. A32 की वैल्यू रिमूव द रो एंड द कॉलम इन विच A32 इज प्रेजेंट, तो 1 -1 -1 and 0, तो ये कितना आ जाएगा? A32 की वैल्यू दिस विल बी 0 एंड -1 -1 इंटू -1 विल बी +1, लेकिन ये माइनस साइन के साथ है, 0 माइनस ऑफ दिस वैल्यू, तो ये माइनस साइन आएगा, -1 और -1 एक बाहर माइनस साइन के साथ, द आंसर टू दिस विल बी +1. अब A33 कितना आ जाएगा? 1 -1 -1 and 2, तो ये सॉल्व करने पर 2 and -1 will be 1, which will be +1. तो cofactor matrix will be the matrix obtained by arranging these cofactors. ये कितने आ जाएंगे? A11 is 2 2 1 and -3. फिर उसके बाद A21 is 0 0 2 and -2 0 2 and -2. A31 की वैल्यू 2 1 and 1. अब इसमें ये चीज़ ज़रूर आपको फैक्टर मैट्रिक्स आने के बाद चेक करना है, क्या कि ये कोफैक्टर मैट्रिक्स सही है कि नहीं. मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. इसकी पहली रो के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट.
और सेकेंड रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करके चेक करके देखो, थर्ड रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करके चेक करके देखो, you'll get the value of the determinant. So the value of the determinant will be 1 into 2 plus minus 1 into 1 and plus minus 1 into minus 3. ये सॉल्व करने पर 2 minus 1 is 1 plus 3 is 4. और यही वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आपको सेकेंड रो के साथ मिलेगी और थर्ड रो के साथ. सो adjoint A will be cofactor matrix का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? 2 0 2 1 2 1. फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया, थर्ड कॉलम को -3 -2 and 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विच इज व्हाट 1/4. तो ये adjoint A डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी A इनवर्स. तो A इनवर्स अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है. तो x विल बी इक्वल टू A इनवर्स इंटू B. सो दिस विल बी 1/4 इंटू 2 0 2, फिर उसके बाद 1 2 1, फिर उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज में शायद अभी हम लोगों ने कुछ गलती करी है क्या? नहीं, परफेक्टली ओके. -3 -2 and 1, इसको आप b से मल्टीप्लाई कर लो. b कितना है? b 0 0 40 and 180. ये मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? 1/4. इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो. 0 + 0 + 360, 0 + 80, 0 + 80 + 180 and 0 - 80 + 180. तो ये कितना आ जाएगा? ये 360 था. तो ये सॉल्व करने पर कितना? 90. 80 + 180 is 260 डिवाइडेड बाय 4 is 65 and 100 divided by 4 is 25. So the value of x, y and z, x is 90, y is 65 and z is 25. So this is the answer.